challenge the then existing government and appeal to the people of Telangana to make right choices in the elections, and the results are known to you. So, after the formation of the new government, again this Dost scheme came up. Then Nawab Saab and the others made a representation to Honorable Advisor Sir. Advisor Sir understood the issue. He talked to the Chief Minister of the state of Telangana, and we are extremely thankful to both of them that they have understood the law and exempted the minority education institution. Thus save the rights of the minority students. Otherwise, for example, in Anwar College, 99% minority students take admission. If those scheme was there, maybe it would have gone to 40 or 50%. So minority students would have been deprived of their rights. Similarly, nowadays, education is the only source of empowerment of an individual, community or nation, and especially the professional education. Now the AICT has made the right policy that they are not stopping any institute from opening new courses or increase in intake. Again, the state governments have not understood that policy. So, sir, we are again thankful to Advisor Sir that he used his best offices and got that sanction from the state government, that minority. These are no mean achievements. These achievements will go a very long way in ameliorating the conditions of the minorities in Telangana. So we have organized this afternoon function to express our heartfelt thanks to the efforts made by Honorable Advisor Sir, and it is our duty giving this brief introduction to Alam Khan Sahab, who is best known as the एजुकेशनिस्ट ऑफ तेलंगाना, और उनके लिए एक शेर है कि दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत इनकी, दुआ करो कि सलामत रहे हिम्मत एक चिराग। Janab Muhammad Ali Shafir Sahab and all my respected friends who are present over here. As is apparent, today we are trying to facilitate Muhammad Ali Shafir, advisor to the government of Telangana, so minorities, SCs, STs, OBCs and all. In fact, all the weaker sections he represents. So, you are all aware that rightly or wrongly, in every policy and at every time, with every government, the minorities have suffered. Their institutions have suffered. The rights have been misused. You know it. I know it. People who are not minorities, they start institutions, try to take advantage of Article 31, which is specific only to the linguistic and religious minorities. This cannot be exploited. I was just saying that Mr. Mallareddy, now the very famous educationist, he was the person who started one Christian college. What right has he got? What right has he got? And he was blessed by the government with a ministership. Hang it over a university, which I would represent to the Telangana government, that all these institutions should be inquired into. We know it, you see, when the inspection of our institutions take place. This KCR's government, Professor Ramna, you are sitting here.
Even for apparatus of such 50 rupees, our colleges were stuck off. Is it a fact or not? We suffered. Despite the fact that I was with him for 12 long years in the course of Telangana movement, he did not allow my institutions. All my institutions were shut off. I did not go to him. उसके दर पे जाके मैं मुसलमानों की इज्जत का नीलाम नहीं किया. I did not sell my self-respect at its place. I went to Supreme Court. This boy sitting next to me, he was part of our fight. So many others were part of the fight. We fought it, and we got the order by the Honorable Supreme Court. It was all right. This government, I say very clearly, ये असलियतों की वजह से गवर्नमेंट आई, मुसलमानों के वोटों की. No doubt about it. I took up the issue. खुला आम में खड़े रह के बोला कि केसीआर को वोट मत डालो, कांग्रेस को वोट डालो. उस वक्त कई लोग डरे, बोले अगर केसीआर जीत गया तो. जंग में हार और जीत लगी हुई है. जो शख्स मौत से डरता है वो लड़ना नहीं चाहिए. बेहतर यह है कि वो घर में बैठे. और मैंने क्या किया, केसीआर की गलादत को एक्सपोज किया. और आप देखिए, यह हकीकत है कि केसीआर तेलंगाना की जंग के अंदर अगर मुसलमान साथ नहीं देता तो तेलंगाना नहीं बनता. तेलंगाना बना, मुसलमान ने मुत्तहिद होकर उसका साथ दिया. लेकिन उस शख्स ने क्या किया, उसके चीफ मिनिस्टर बनने के साथ साथ फौरन 3-4-5 महीने के अंदर सबसे पहले 5 मुसलमानों को आलेर में खत्म किया. आलेर एनकाउंटर, यह फैक्ट है. 55 मुस्लिम स्कूल्स को जो है खत्म कर दिया गया, कॉलेजेस. यह फैक्ट है, बिल्कुल कांट डिनाई इट. और इतना हैरेसमेंट किया गया. दोस्त कनेक्टेड विद JNTU I will just request them, if I am speaking something untruth, please stand up and stop me. Even for an apparatus, 50 रुपए के apparatus के लिए पूरे कॉलेजेस को बंद किया गया. This is a fact. माइनॉरिटी राइट का मिसयूज जब भी हुआ, आज भी हो रहा है. Against this, we minorities, genuine minorities, must step up, stand up, fight for our rights, and tell this government through our advisor that a law is, we require a law that will bar non-minorities from using the rights of minorities. This is something which we require. This protection is required. Just imagine that one single institution, all the institutions run by Mr. Mallaredi, they have demanded an increase of 3,000 seats in computer science. So this Mallaredi wants 3,000 seats. So what will all the colleges do? Should they exist or they should not exist? And the ratio of teaching staff is, you know it, I know it, 1:20. For 3,000 seats, how many professors and what are the other the teaching staff required? Does Telangana have that? The entire state of Telangana? Can you provide so many teaching staff to a single course? What the government has done by refusing is very correct. The government decision is totally backed by the Honorable Supreme Court decision. Supreme Court is clear. The consent of the state government is required. One thing. The other aspect is, as far as we are concerned, we stand on a totally different footing. Our rights flow from Article 31, supported by the Act
for minority Commission for Minorities Institution Education for Education is very clear. Chapter 3 of that act is very, very clear as far as our rights are concerned. If the government has given us 2 sections, given us a GO, we are thankful to them. We are thankful to them. And this matter must be brought to the notice of the court that this 2 sections per college flows from this act with fulfillment of our rights. It's not gratis. Understand this? It's very necessary. Now the important aspect I turn around. Within 3 months of this taking over charge as the Chief Minister, Mr. Kesia, he slaughtered 5 Muslims in Al-Air encounter, which is now known notorious as the Al-Air encounter. Shut out of 55 colleges. This is a bloody fact. ये हकीकत है. इसको डिनाई नहीं कर सकते. Compare it with Revant Reddy. ये सब आया हमको 2 सेक्शन दे दिया बगैर पूछे. कौन अच्छा है? ये अच्छा है, वो अच्छा है. खुली बात. I don't want to miss words. We will support those who support us. Very clear. We supported Revant Reddy, he is supporting us. We are thankful and we are grateful. And we feel and we hope that this is not the end of the matter. We require the government support. Our money should be released. And I hope Mr. Sabir Ali, the advisor here, he is a senior person, very articulate in his attitude. A person who gets the work done. I am telling it. I have got experience. If you want to get the work done, Sabir is there. He is a senior person. आप हमारे पैसे दिला दीजिए. हम लोग परेशान हैं. गुज़िश्ता 10 साल से हमारे पैसे नहीं मिले. In fact, the education sector, the government owes 6,500 crores. Without 6,500 crores, the non-minority colleges with fees ranging from ₹1 lakh to 2 lakh to 2 lakh, 2.5 lakh. Here the situation is different. We are poor. हमारी फीस 35,000 से 50,000, 60,000, 70,000 फिनिश. End of the matter. यहाँ हमारा सर्वाइवल आसान नहीं है. It's very difficult. सबसे पहली बात यह है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि जो आपने रिप्रेजेंटेशन किया और कामयाब रिप्रेजेंटेशन किया जिसकी वजह से हमारे सीट बढ़े. और हम वो इंस्टीट्यूशन है, हम फख्र से कहते हैं अगर 100 सीट पढ़ते हैं तो हमारे पास 100 मुसलमान पढ़ते हैं. ये कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूशन नहीं है कि 5 मुसलमान हो 55 हिंदू हो या 55 वो हो जो पैसे देते हो. वो नहीं है मामला. Our matter is very clear. The 2 sections which I got, everybody is invited to check it. 100% minority admission. I am proud of that. Nothing hanky-panky. If seats are remaining, then I will invite the non-minorities. No problem about it. Absolutely no problem. So I come to the conclusion, because the timing is running out, that our problems which we have represented, you see, there is another very serious problem which I have represented to the Honorable Chief Minister. You were there. That is the admissions in undergraduate degree courses. Minorities are exempted by a Supreme Court order, clear order in Islamia Academy matter, that they cannot enforce it. No regulatory authority can enforce admissions as far as minority institutions are concerned for undergraduate courses, and the government has exempted us. But there is a huge problem to that. When we represented the matter to the previous government, they also exempted us. But
as a punitive step, they stopped the scholarship to all those students who took admissions in Muslim minority colleges. This punitive action must end. There cannot be any compromise. Our students are very poor, absolutely poor. भाई सारे लोग चल के उनका शुक्रिया अदा करें, हमारे प्रॉब्लम जो है आपको भी रिप्रेजेंट करें और उनके सामने डायरेक्टली रख दें। सबसे पहले ये बात है कि उन्होंने ये काम किया, इट इज बट नेचुरल। थैंक यू वेरी मच। My dear friends, good afternoon to each and every one of you. Having heard the sir who spoke and completed just now, I don't think we need to add anything more to be said. However, as he was saying, the admission certainly is our right. We have been given right by the constitutions, and in spite of that, we are not allowed to admit our own students. And every year, we are running to the government asking for permission to admit our students. And even this year also, all the colleges suffered. And therefore, once again, along with all of you, I also would like to reiterate, kindly give us a permanent GO with regard to the exemption at the time of our admissions of our undergraduate students. And at the same time, as students who are coming to our colleges are poor, be it Muslim students, be it Christian students, they are not rich at all. And therefore, we would like to certainly also get scholarship like anybody else who is being admitted by the government to those. Those is admitting, and all those students get their scholarships. And we have a right to admit our students, and although we are exempted, still our students do not get their scholarships. And therefore, what happens are ultimately the numbers go down because our students are not able to get their scholarships, and therefore the college, although we run our colleges very well. And from this point of view, I would like to once again ask our Shabir Ali sir, kindly give us a permanent GO exempting us from at the time of our admissions, at the same time asking government to give scholarships for our students. And we are extremely grateful, sir, for all the helps that we have given all these years, and particularly our Muslim friends who have been voicing their requests to the government, because of whom, of course, we are a very small minority. We also are able to get whatever we require from the government. And at this juncture, joining with our Muslim friends, I would like to make this request, namely, when we request you, kindly listen to us and take us wherever it's necessary in order to get our requests heard and also fulfilled. So with these words, I thank the organizers for calling us, and I hope that our meeting today will see not only a day of fruitful day, at the same time, a satisfactory running of our institutions for the ordinary and the poor people of our own institutions. Thank you very much. Who is in the forefront of fighting rights of the educational institution. Sir. I wholeheartedly thank my friend philosopher Mehboob Khan Saab for arranging this meeting and inviting Muhammad Shabir Ali Garu and all of us here to have a discussion on minority issues. Thank you very much, sir, once again. Sir, for the last 10 years, 2014 to 24, we, the educationists, never felt that we can state in the universities, government, AICT, or in the National Minorities Commission that we are minorities. That is a word which nobody wanted to listen. Sir, my friends were telling that so many minority colleges were closed. Why? I am putting a question to myself, why so many minority colleges were closed? Sir, I want to give a brief detail on this issue. Yes, for Constitution of India and also Society Act, two types of institutions are there. Permissible institutions, impermissible institutions. For those which are working with not-for-profit motto, established and administered
as an occupation, means of livelihood, or mission in life, like altruist, when there is no element of profit generation. All the minority institutions which have closed, they belong to permissible category of not-for-profit institutions. They could not get any special privileges at the time of approval from the AICT, permission from the government, and affiliations from the universities, struggled a lot for getting even the. Whereas the impermissible category of institutions, sir, I can state without any fear that all these private universities granted permission, all 5 private universities granted permission, as well all 7 private universities in the pipeline whose proposals were signed by the government. The Telangana government is going to pass an act granting permission to them. All are doing only commerce. Before converting in university, they are doing commerce. After conversion also, they are doing commerce. There are about 6 to 7 deemed universities working in the state of Telangana. All are doing commerce. There are about 45 to 46 non-minority autonomous colleges functioning in the state of Telangana. All are doing commerce, commercialization, and transferring the money to their private businesses, reinvesting part of the money in the education, spending money for earning more money, criminalization of education, money laundering. All these activities are going on, sir. I can prove beyond doubt whatever I am telling. I have evidences for all these colleges about their commercialization. Sir, I request the government to conduct a forensic audit. Sir, if you go to an educational institution, first condition, the investment, all the investment should be a philanthropic contribution. Should you visit any of the private universities, sir, the investment, if you can calculate, it will be about 300 to 400 crores. If you go to their books, it will show only 20 crores, 30 crores, 40 crores. The balance amount, if we can conduct a forensic audit, we will definitely find out what is the real investment, what is the investment shown in the books. Why government don't want? Is it not the duty of the government to ensure that education should be not for profit? When commerce is going and sir, the college chairmen are spending 100 crores contesting in the MP elections. Where is that money? How they got that money to spend 100 crores as an MP? This all looted money from the common man. I request, my first request, sir, because of the looting, commercialization, those colleges are flourishing because they get all facilities. If you have money, you can purchase private university status, you can purchase deemed university status, you can purchase DINOVA university status, you can purchase accreditation, you can purchase ranking. There is no limit. You can whatever you want, you can purchase. Because of the uncontrolled commercialization, the minority institutions are suffering. They have 90% of the colleges have been closed. So the only way of survival of this minority institution should be stop commercialization, control commercialization, conduct forensic audit, find out the culprits, close them, book criminal cases, then entire education system will be set right. Second, sir, when during the last 10 years, when we got to the university, even for, you all know that minority institutions have got a constitutional right of establishment and administration. In the administration, there should not be any external influence. Governing body, there should not be any government nominee. Staff selection committee, there should not be any university nominee. So for the last 10 years, we are compelled, forced to take governing body nominee from the government and university, to take subjects experts from the university to select our teachers, sir. This is humiliating. Sir, this is still pending, sir. My second request, sir, see that there should not be any external influence in the administration of minority institutions. Third, sir, just now my friend was also referring, why 10%, additional 10% for EBC reservation is not given in minority institutions, sir? If it is a non-minority institution, if they have 100 seats, 100 plus 10, 110 seats will be put in the counseling. If it is a minority institution,
only 100 seats. Why, sir? Why this discrimination? For seats which are in demand like BEd, computer science also, all non-minority institutions 10% more. For minority institutions only whatever permitted. Sir, this is also an issue which has to be looked into, sir. Sir, there are about 14, 15 universities, sir. Why not one university is given to Muslim minorities, sir? Why not one university is given to Christian minorities, sir? Can't we run? Are we not aware of the rules of how to run, administer a university? Sir, it is very easy to run a university than running a school, sir. Kindly, our request will be, there are about now, sir, till date, not even one, this should be the pride because there are more number of Muslim population in Hyderabad, sir. And to respect Hyderabad Muslims' pride, sir, at least, sir, you can take up the issue, see that there should be 2 to 3 Muslim universities and 1 Christian universities in this academic year 24-25, sir. One more issue, sir. Polytechnical admissions, sir, I have been seeing polytechnical admissions for the last 10 years, sir. If a non-minority institution, 100% seats will get reimbursement. If it is a minority institution, only 50% of seats will get reimbursement. Other 50% will not get reimbursement. See, minorities are not getting scholarships. The 50% is those who are nominated by the Yes. Only the 50% allotted by the convener only are getting reimbursement. The 50% earmarked for the management to be filled with the concerned minorities, they are not getting reimbursement. We have been fighting this issue several times. We have given several representations, but we could not get it. Sir, there are several other issues, sir. There are so many people who are expected to speak, sir. As you suggested me, sir, I will come and submit you a detailed note, sir, requesting by including other requests of the minority communities also, sir. Sir, we thank the government of Telangana for creating an environment that is minority friendly environment in the state of Telangana. Sir, immediately after government came into power 24-25, there are about 150 engineering colleges got increase of intake, additional courses, etc., etc. The government under the able leaderships of Revant Reddy Garu and widely advised by Muhammad Shabir Garu has issued a circular that allowing all minority institutions increase of intake, conversion of courses, merges without stopping one course, one college also. All the colleges are given permission, sir. On behalf of all the minority institutions, we thank the government of Telangana headed by Revant Reddy Garu for this, sir. And for all other non-minority institutions, they are fighting in the courts. Today also from 2:15 to 3:15 there was a lengthy fighting, sir. I have seen that fighting also through online, sir. They are only objecting that there is an inclusive discrimination. Government has granted 100% seats, all permissions to minority institutions, whereas government has not given that same facility to us. That's why it's inclusive discrimination, whereas the government is strongly supporting. They are stating that the minorities are deprived, depressed. They lost several opportunities, so that's why it is the bounden duty of the government to make them equal on par with non-minority institutions. We have granted the permissions to all the minority institutions, not even stopping one seat also. We thank the government, sir. We will continue our support. We hope that the government also will continue the minority-friendly environment, minority-friendly policy for this entire 5 years and next years also to come, sir. Thank you very much. Request Janab Zafar Javi Saab, Secretary Sultanul Education Society, to share his views. Advisor to government, मेरे दोस्त खदीम साथी मोहम्मद अली शबीर साहब,
शाह आलम खान साहब, गौस साहब, मुजाहिद आलम खान साहब, मोअज़्ज़िज़ीन जो तशरीफ़ फरमा है इस महफिल में, और मेरे सहाफ़ी दोस्त, सबसे पहले तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे बात करना है। मैं काफ़ी रिलैक्स बैठा हुआ था। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छी चीज़ भी आज जो महबूब आलम खान साहब ये जलसा मुनक़िद किए हैं। सबसे पहला फरीज़ा यही होता है कि जो हमें मदद की है उसका शुक्र अदा करें, और एक बहुत बड़ी रस्म आप अदा किए, और हमारे रहनुमा मोहम्मद अली शबीर साहब, जिसको मैं आज पूरे 35 साल से जानता हूँ, 35 साल से साथ का काम कर रहा हूँ। इनके खिदमात, इनकी तबीयत, इनकी फितरत, हर चीज़ से जो है बखूब वाकिफ़ हूँ, क्योंकि शानबा शाना कई लड़ाइयाँ आपके साथ लड़ा, एक लड़ाइयाँ महबूब आलम खान साहब के साथ बोले तो एक तरफ उधर नहीं, कई रिप्रेजेंटेशंस। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाना बाज़ाब्ता एक जंग के लिए तैयार हुए वैसी बात है। रोज एक नया ऑब्स्टिकल, एक नया हर्डल आपके सामने आता है, और फिर हम सब साथ होते थे सोच फिक्र में कि जो है इसको क्या करें। अभी जिसको सुने आप के राव, ये बहुत ज़बरदस्त लीगल माइंड है, इनको रास्ता बताते थे और जंग साथ चलती थी। एक 2014 से 24 तक, या पहले 2004 से 14 तक बात करेंगे, जहां पर 2009 तक डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी साहब हमारे रहनुमा थे। इनके दौर में तालीमी इदारों को जितना फायदा हुआ, जितनी मदद हासिल हुई, मैं नहीं समझता कि गुज़िश्ता 30-40 साल से जब महबूब आलम साहब और हम साथ चल रहे थे उतनी हुई। आपका रिजर्वेशन जो था पहले 5% फिर 4% उन्हीं के दौर में हुआ। आज जो रिएम्बर्समेंट मिल रहा है और बच्चे जो है पढ़ सक रहे कौम के, वो भी उन्हीं के ज़माने में हुआ। शुरू में जो है पार्शियल रिएम्बर्समेंट था, पूरा रिएम्बर्समेंट नहीं करती थी गवर्नमेंट, मगर एक 2006 से यानी फुल रिएम्बर्समेंट करने लगी। न सिर्फ फुल फी रिएम्बर्समेंट करती थी बल्कि टिल सैचुरेशन करती थी, यानी अगर 1 लाख बच्चा भी है तो 1 लाख बच्चे को जो है रिएम्बर्समेंट मिलता था। जो लोग पहले इस दौर से पहले हम बहुत करीब से देखे कि जो है लोग अगर इंजीनियरिंग या कोई प्रोफेशनल कोर्स करते थे तो उनको जो है कर्जे लेना पड़ता था। उनकी उतनी आमदनी नहीं थी कि ये प्रोफेशनल कॉलेज का एजुकेशन ये लोग परस्यू करें, कर्जे लेके जो है पढ़ते थे। मगर राजशेखर रेड्डी साहब का जो है, मैं उनके लिए दुआ तो नहीं कर सकता, मगर जो है उनकी देन थी कि गरीब से गरीब बच्चा पूरा, यानी CBIT हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जहाँ पे फीस 1,60,000 है, उसको एक दमड़ी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। भाषा भाई आप ताजुब से देख रहे हैं, गलत बोल। और उसके बाद में 2014 में जो है KCR का दौर आया। हम वो भी दौर देखे जब महबूब आलम खान साहब KCR के काफी करीब थे और काफी गुण गाते थे, मगर उसके बाद में नतीजा ये हुआ कि मैं समझता हूं कि आलम की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कॉलेज का इंस्पेक्शन पुलिस ऑफिसरों के जरिए।
अगर कोई गलती खामी निकलती उस सुधारे में तो डीएसपी रैंक का आदमी इंजीनियर प्रोफेसर के साथ जाके एफआईआर लॉन्च करते थे। मैं बहसीत जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हर 2 महीने को एक खत लिखता था कि अपॉइंटमेंट दे, हम नुमाइंदगी करना चाह रहे हैं। पूरे 10 साल गुजर गए, एक बार जो है उनको सिवाय तस्वीर के जो है बिलमुशाफा देखने का शर्फ हासिल नहीं हुआ। He was so arrogant and so negligent about educational institutions. और ये रेवंत रेड्डी साहब की हुकूमत बनने के बाद मैं समझता हूँ कई मुस्लिम डेलीगेशंस कई बार उनसे मिली है और जो नुमाइंदगी करे वो जो है ये खुद मिसाल है इस बात का कि नुमाइंदगी करे मोहम्मद अली शबीर साहब के गुड ऑफिसर्स के जरिए और सीट्स कई इदारों के बढ़ गए। मैं एक्चुअली नहीं आना चाहिए था क्योंकि हमारे सीट्स नहीं बढ़े, मगर मैं बोला कि have to flow with the group, with the community, and hence I'm here. और मैं ये समझता हूँ कि ये पहली बार नहीं है कि शबीर साहब नुमाइंदगी कर रहे हैं या कोई मुस्लिम डेलीगेशन गया। I hope we make repetitive representations when we face with such hurdles and obstacles, and each time our request would be answered by the government, and we will have to meet again and again to thank Mr. Revanth Reddy for what he's done for the minorities. It's just the beginning, and I hope we stay united. I hope we have good communication between us, and the minorities and the minority institutions prosper. Thank you Shabir साहब, thank you Revanth Reddy गारू, thank you महबूबा आलम साहब के आप ये नशिस्त का एहतमाम किए और you have all of us together on the same platform. Thank you. Jai Hind. Honorable personalities on the dais, and ladies and gentlemen, सिर्फ 2 मिनट जो है सके मैं बात करना चाहूँ साहब को। जो है हमारे जो प्रॉब्लम सब तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई है, लेकिन असल जो पेट में दर्द हमारा है वो साहब के सामने रखे तो उसका हल होता बोल के मैं सामने आया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम साहब, जिस वक्त में जो कांग्रेसी हुकूमत थी 2004 से लेकर 2014 तक, वो सुनहरा दौर था आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हुए वही दौर में फले और खुले और वहीं पे जो है डेवलपमेंट। जैसा 2014 आया, आने के बाद में खास तौर पे माइनॉरिटी कॉलेजेस ऐसे टारगेट किए गए और पूरे 55 कॉलेजेस जो है सके दबाव हो गए और पूरे कॉलेजेस को ये लोग बंद कर दिया। लोग सबसे पहले क्या करें, हमारे को स्कॉलरशिप मिलती थी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, वहाँ से कट करके ये लोग सोशल वेलफेयर में डाले साहब। वहाँ आते ही जो है सके स्कॉलरशिप 2-2, 3-3 साल के बाद मिल रहे थे, तो हमारा ऑक्सीजन कट हो गया सब वहाँ पे। तो आज तक जो है सके ऐसे परेशानी में है, जो भी बचा कुचा है और जो भी था सारी चीज़ें जो है सके बेच बिचा के अब तक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला रहे, और सिर्फ जो है सके थोड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बचे हुए हैं, और वो भी जो है सके आप जैसे इससे पहले माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के अंदर बताए थे, जैसा हुकूमत आते ही आपका सपोर्ट रहेगा डेफिनेटली। आप जो है सके जो बात बोले थे वो वादे पे आप जो है सके बिल्कुल आए सब, उसका सबूत है जो इससे पहले 2 दिन के अंदर कई लोग कोर्ट को जा रहे हैं, यहाँ वहाँ 2-3 महीने से वो लोग कई पैरवियाँ करने के बावजूद भी उनके कॉलेजेस के अंदर सीट्स एनहांस नहीं हुए। सिर्फ आपकी नुमाइंदगी पे 2 दिन में जो है सके सबको बैठे जाएगा 120-130 सीटें। इसके लिए हम आपके बेहद जो है सके हम शुक्रगुजार हैं साहब, और हम अगर फिरे तो हमारे अटेंडर के अंदर आने नहीं देता साहब। तो ऐसे हालात हम 10 साल देखे और बहुत ही जो है सके तकलीफों से हम गुजरे हैं, और आज जो है इतनी खुशी हो रही कि फिर से जो है सके ये हुकूमत, ये माइनॉरिटीज की हुकूमत आई बोल के हम लोग बहुत खुश हैं। और डेफिनेटली इसका सबूत है जो 2 दिन पहले जो जीवो आया है, तो ये जीवो जो है सके इसका सबूत है कि ये हुकूमत माइनॉरिटीज की और माइनॉरिटीज की मदद के लिए आई हुई हुकूमत बोल के हम बिल्कुल बोल सकते। मैं इसके लिए मैं आपका जो है सके बहुत ही शुक्रगुजार हूँ साहब। तो सबसे पहले
इसके अलावा जो दूसरा जो दोस्त का था डिग्री कॉलेज में 10 साल से मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली सर डिग्री कॉलेज के अंदर। गरीब बच्चे जो है वो लोग अपने पैसे देके पढ़े, और हमारे जितने मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस है पूरे गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए, गरीब बच्चों को, गरीब फैमिलीज को डेवलप करने के लिए जो है एस्टेब्लिश करे हुए हैं। नॉट लाइक के राव साहब बोले 200, 400, 500 करोड़ वैसे कमाने वाले इंस्टीट्यूशंस नहीं होते। हम एक एक रुपया जमा करके, मेहनत करके वो पैसे लगा के हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आज चला रहे हैं सब। कोई इंस्टीट्यूशन हमारे पास, किसी के पास भी 20 लाख से बढ़ के गाड़ी नहीं है सब छोटे छोटे गाने वाले हैं। और पूरे जो है कि अब वो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज देखे तो वो लोगों का टर्नओवर 150 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ है, और वो लोगों का हर काम हो जाता। तो हम लोगों का वैसा नहीं है, हम बिल्कुल गरीब बच्चों को पढ़ा रहे सब। पहले आप भी देखे कि काउंसिलिंग में जब आते थे बिल्कुल गरीब बच्चे चप्पल पहन के आते थे, और आपकी नुमाइंदगी से जो स्कॉलरशिप मिली वो उससे जो है कि आज बच्चे पढ़ के कहीं कहीं है। और आप भी जो है कि जानते हैं फर्स्ट बच्चा जो फर्स्ट स्कॉलरशिप जो हासिल करा, सीट मिली लेकिन उसको फीस पे करने में नहीं रहा, तो आप भी फीस पे करके उसको डॉक्टर बनाए, और बहुत जो है कि आला डॉक्टर बना हुआ है बच्चा हो, वो भी साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही। तो पूरा किस्सा साहब सुना रहे थे, और साहब तो जो है रिजर्वेशन के चैंपियन है, और आज तक रिजर्वेशन बरकरार है तो सिर्फ और सिर्फ साहब के वजह से जो है कि वो रिजर्वेशन है। तो जो भी काविशें आपके हैं सब, और आपकी जो है कि नुमाइंदगी ऐसी रहती सब, आगे वाले को मालूम भी नहीं होता, काम हमारा हो जाता साहब। तो इससे पहले हमारे 35 माइनॉरिटी कॉलेजेस का स्टेटस निकल गया, तो सुबह में गया तो शाम के 4 बजे तक बहाल हो गया। तो ऐसी नुमाइंदगी आपकी रहती है, और आज भी जो है कि वाकई काबिल तारीफ है जिस तरीके से आप जो है कि हमारे को जो सीट्स दिलाए हैं। तो ये आखिरी में जो है साहब, अब हम तो सीट्स वगैरह आ गए, और कॉलेज में बच्चे भी जो है कि एडमिशन ले रहे हैं, और बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों का ऑक्सीजन होना है सब, तो वो भी जो है कि आप ही कर सकते हैं। तो माइनॉरिटी कॉलेजेस का जो स्कॉलरशिप का इनकम है 100-150 करोड़ से ज्यादा नहीं है सर, 100-150 करोड़ के अंदर ही है। एक नॉन माइनॉरिटी कॉलेज की जो फीस है, वो फीस का टोटल अमाउंट हमारे पूरे माइनॉरिटी कॉलेज को बराबर होता है। तो आपको एक ऐसी तदबीर निकाल के सीएम साहब के सामने अगर हमारा रिक्वेस्ट, और वैसे भी जो है कि अपॉइंटमेंट साहब दिलाते बोले सीएम साहब से मिलने के लिए, तो वहां पे अगर आपके सदारत में नुमाइंदगी अगर हुई तो एक 50-60 करोड़ 100 करोड़ भी अगर आ गए तो हमारे कॉलेजेस पूरे ठहर जाते हैं। तो ये 2-4 पॉइंट्स जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। थैंक यू सर। नवाब महबूब आलम खान साहब, सेक्रेटरी अम्बालूम एजुकेशन एसोसिएशन, जनाब शबीर अली साहब, एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना SC/ST माइनॉरिटीज, नवाब मुजाहिद आलम खान साहब, जॉइंट सेक्रेटरी अम्बालूम एजुकेशन एसोसिएशन, जनाब जफर जावेद साहब, सेक्रेटरी सुल्तान उलूम एजुकेशन सोसाइटी, जनाब गौस साहब, सेक्रेटरी आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो मैं नवाब महबूब आलम खान साहब और नवाब मुजाहिद आलम खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ आज के इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इन ऑनर ऑफ जनाब शबीर अली साहब, सबसे पहले तो मैं नवाब महबूब आलम खान साहब और मुजाहिद आलम खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और चंद चीज़ें जो पिछले हम 10 साल से मैं बहुत करीब रहा हूँ नवाब महबूब आलम खान साहब और मुजाहिद आलम खान साहब के, और पिछले 10 साल से हम जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, और आज माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस का अगर वजूद अमल में है तो वो सिर्फ महबूब आलम खान साहब की वजह से। आप जानकर खुश होंगे कि 2014 में तेलंगाना बना, हम सब खुश थे कि तेलंगाना फॉर्म हुआ, केसीआर साहब सीएम बने और कॉलेजेस का एक अच्छा सिस्टम बनकर कॉलेजेस चलेंगे।
जून में तेलंगाना फॉर्म हुआ, अगस्त में जब इंजीनियरिंग की काउंसलिंग आई तो आप सुनकर ताजुब करेंगे कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ जो हैदराबाद तेलंगाना में हुआ। 174 इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद कर दिया रातों रात। दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो तेलंगाना हैदराबाद में हुआ। 174 इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एफिलिएशन रोक दिए। हम हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट से ऑर्डर आया, वो हाईकोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। फिर हम डिवीजन बेंच गए, वो ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हुआ, काउंसलिंग चलते रही। तो मुझे अच्छा याद है, हम ये ऑफिस में बैठे हुए थे, बुलाए बड़े बाबा, बुलाकर बोले कि तैयारी करो सुप्रीम कोर्ट जाने की। तो आप सुनकर खुश होंगे कि मैं, मेरे भाई मुजाहिद आलम खान साहब और चंद माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के चेयरमैन हम मिलकर दिल्ली गए और दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर, हम केस फाइल करें। 3 महीने सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चलते रही। दशहरा की छुट्टियां आ गए, सितंबर अक्टूबर में डिले हो गया। नवंबर में जो ये 3 महीने का जो प्रोसेस रहा, उसमें आप जानकर खुश होंगे कि इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट लॉयर्स को हम हायर करें, जिसकी एक एक हियरिंग की फीस लाखों रुपए थी। कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, गोपाल सुब्रमण्यम, ऐसे लॉयर्स को हम रखे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम केस जीते। और हिस्ट्री में काउंसलिंग के 4 महीने के बाद भी फिर रीशेड्यूल हुई काउंसलिंग और नवंबर में काउंसलिंग हुई और जो कॉलेजेस को 174 कॉलेजेस को रोक दिए थे वो पूरों को काउंसलिंग में ऐड करना पड़ा। तो मैं समझता हूं इसका क्रेडिट तो सबको जाता है, मगर खास इसके पीछे जिसकी फॉलोअप था और जिसका वो था हमको इंस्ट्रक्शंस के जाओ ये करो, वो महमूद आलम खान साहब थे। ये मसला अभी खत्म ही नहीं हुआ, हम परेशान है। 2014 से 15, 16 से दोस्त ऑनलाइन का एक प्रोसीजर लाई गवर्नमेंट। मुझे अच्छा याद है, रंजीव आचार्य मैडम प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन थे, उन्होंने मीटिंग कॉल फॉर करके पूरे माइनॉरिटी कॉलेजेस को बुलाए और बोले कि आपको, अब दोस्त हम ऑनलाइन सिस्टम ला रहे हैं, आप पूरे अपने कॉलेजेस को इंक्लूड कर देना। तो महमूद आलम साहब भी थे मीटिंग में, बोले मैडम यू आर गोइंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू आर गोइंग अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट TMA जजमेंट, यू कैनॉट इंटरफियर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस एंड इफ यू डू सो वी विल गो टू कोर्ट और हम स्ट्रक डाउन कर देंगे। तो मैडम को गुस्सा आया, उन्होंने बोले हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। तो बड़े बाबा को भी गुस्सा आया, बोले हम आपको भी नहीं मानते, आपके ऑर्डर को हम नहीं मानेंगे और हम हाई कोर्ट जाएंगे और उसको स्टे कर देंगे। तो अभी मीटिंग खत्म ही नहीं हुई थी, हाई कोर्ट में मैटर आया और एक हियरिंग में जज जो है उसको स्टे कर दिया। तो फिर हम रंजीव आचार्य मैडम को बोले कि आप ये नको करिए, इससे गवर्नमेंट को बैड नेम जाएगा, आप काउंसलिंग में इंक्लूड मत करिए और ये चीज छोड़ दीजिए, ये हमको परमिसेबल है कि अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हम खुद रन कर सकते हैं। तो उन्होंने भी जिद पे है। उसके बाद फिर एक रिप्रेजेंटेशन हम लेके बड़े बाबा की सरपरस्ती में सीएम साहब के पास गए। सीएम साहब कड़ियम श्रीहरि जब हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनको बुला के बोले भाई आप एग्जाम कर दो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को। तो 5 साल 6 साल से हमको हर साल एक मेमो दिया जा रहा है, जीरो नहीं, मेमो दिया जा रहा है ये बोलकर कि यू आर एक्सेप्टेड फ्रॉम दोस ऑनलाइन एडमिशंस। मगर उसका डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि जो बच्चे एडमिशंस ले रहे ऑफलाइन, उनको स्कॉलरशिप नहीं आ रही। तो पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स में यह बेचैनी है कि अगर हम इनके पास डायरेक्ट जाएंगे तो हमको स्कॉलरशिप नहीं आएगी, और दोस्त ऑफलाइन प्रीफर कर रहे हैं वो लोग। जो दोस्त ऑफलाइन में हमारे कॉलेजेस में है, माइनॉरिटीज जो भी है, तो हम चाहते हैं कि मोहम्मद अली शबीर साहब इसमें इंटरवीन करें और हमको जियो अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है।
और आप सुनकर खुश होंगे कि ये तो केसीआर साहब की 10 साल की हुकूमत के बारे में मैं सुना रहा था। शबीर अली साहब से हमारे वालिद के मरहूम पिछले 40 साल से ताल्लुकात थे। हमारे लिए शबीर भाई हमारे सरपरस्त थे। कांग्रेस हुकूमत 2024 में बनी। मैं शबीर साहब के घर को गया, मुबारकबादी दिया और एक मेरी फाइल पेंडिंग थी। मैं एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि शबीर भाई ये मैं मेरे मरहूम वालिद के नाम से एक लॉ कॉलेज खोलना चाह रहा हूं, तो जिसका बार काउंसिल से भी हमको परमिशन मिल गया। अब जियो अवेटिंग है, तो एक हफ्ते के अंदर मोहम्मद अली शबीर साहब को जियो दिला दिए। मैं मशकूर हूं, ममनून हूं मोहम्मद अली शबीर साहब का कि प्रोसेस जल्दी कराए और 10 दिन में फाइल मेरी सेक्रेटेरिएट से, हायर एजुकेशन से, फाइनेंस से सब क्लियर होकर हमको जियो मिला और इंशाअल्लाह ताला हम मेरे मरहूम वालिद के नाम से इस साल लॉ कॉलेज स्टार्ट करेंगे। और ऐसे कई चीजें हैं जो शबीर साहब के पास हम बेझिझक चले आते हैं, आधी रात को जाते हैं। और इंजीनियरिंग का परसों जो एक पॉलिटिकल लिस्ट आउट हुई थी 20-21 कॉलेज की सीट्स एनहेंस की, तो मैं रात में फोन करा शबीर भाई को, तो बोले आप कल सुबह आ जाना, रिप्रेजेंटेशन बना के आना। तो हम सुबह रिप्रेजेंटेशन बना के शबीर भाई के पास गए, तो मेरे सामने जो दूसरे एडवाइजर है वेम नरेंद्र रेड्डी साहब को फोन करके बोले कि आप जो करें वो गलत करें, माइनॉरिटीज को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते और ये जो आप दूसरे कॉलेजेस को इंक्लूड नहीं करें उनको इमीडिएटली इंक्लूड करना। और शबीर साहब के फॉलो पे वो पूरे कॉलेजेस इंक्लूड हुए और पूरे कॉलेजेस को एडिशनल सीट्स मिले, जिसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर। और मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपको सेहत दे और लंबी उम्र दे। मैं फिर एक बार जनाब मुजाहिद आलम खान साहब का और महबूब आलम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे यहाँ पर बुलाए। बेहद शुक्रिया। अस्सलाम। एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना कि वो अपने ख्यालात से हम सबको महसूस करें। इस कौम की बिल्डिंग यानी कौम को किस तरीके से आज के चैलेंजेस पे बनाने के लिए ये इंटरेक्शन सभा के सदर आली जनाब नवाब महबूब आलम खान साहब, मेरे साथी जफर जारी साहब, शाह आलम जी, मुजाहिद आलम खान, गौसा, चेयरमैन अब्दुल्ला कॉलेज केवी राव जी, बादशाह मोहिउद्दीन जी और भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के यहाँ पर इंतज़ामिया या उसके बोर्ड के चेयरमैन, प्रोफेसर रमना जी, मीडिया के बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मीडिया के साथियों, हमारे कांग्रेस के भी ऑर्गेनाइजर्स आए हुए हैं, उनका सबका यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि गवर्नमेंट पहले से कहती आई कि कांग्रेस पार्टी जब भी थी ये माइनॉरिटी की दोस्त हुकूमत है। माइनॉरिटी को अपलिफ्टिंग करने का हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि मुसलमान भी या क्रिश्चियन भाई भी या अदर हमारे बीसी या दलित भाई जो पिछड़े हैं वो तमाम सबके साथ भागे, तब भी सबका विकास, सबका विश्वास होता है। लेकिन खाली हम स्लोगन देते हैं कि सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन अमल नहीं होता है। जब 2004 में हमारी सरकार बनी, राजशेखर सीएम बने, 56 डेज के अंदर कांग्रेस हुकूमत ने 5% मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा का अमल में आया। सिर्फ एजुकेशन में नहीं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल बॉडी सिलेक्शन में भी हमने 5% दिया। लेकिन संघ परिवार के लोगों ने हाई कोर्ट में डिविजनल बेंच, फिर उसके बाद 5 जजेस हेडेड बाय द चीफ कंडीशन लगाया। कंडीशन नंबर 1 कि नाउ
रिजर्वेशन स्टेट में 46% है, लेकिन 5 आप देने से 51 हो गया। 51 होने से इंदिरा साहनी जजमेंट, जो 11 जजेस का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट ने बार लगा दिया कि 50% से रिजर्वेशन नहीं बढ़ना है टोटल इंडिया में। कोई भी स्टेट हो विद इन द 50% वो नीचे ऊपर कर लो, SC ST BC माइनॉरिटी बढ़ा लो, कम कर लो, लेकिन अबोव द 50% नहीं कर सकते। तुमने वायलेट करे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, लिहाजा आपका स्टक डाउन कर रहे हैं हमारा जियो 33। फिर सेकंड बोले कि माइनॉरिटी कमीशन, BC कमीशन के रिपोर्ट के बगैर आप BCE कैटेगरी में कैसे लाते हैं? आप BC कमीशन का रिपोर्ट लेके आओ। नंबर 3 उसके अंदर ये था कि जब तक तुम लोग मजहब का नाम लेंगे तो रिजर्वेशन नहीं चलेगा। मजहब का नाम मतलब उनकी बैकवर्डनेस का हमको सर्वे करके बैकवर्डनेस बताओ। ये 3 कंडीशन लेके आओ। हमने 3 कंडीशन लाने में 1 साल लग गया, तो 2004 और 5 में दिए, 5 और 6 नहीं दिए। फिर 6 और 7 में रिजर्वेशन शुरू हुआ। 5 को 4 करे, 4 करने से 46 + 4 50 हो गया। तो इंदिरा साहनी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हम लोग बाहर आ गए, नंबर 1। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम पहले लगाए थे मुस्लिम रिजर्वेशन कोटा, उसका नाम बदल दिए। उसके बाद रखे सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड रिजर्वेशन कोटा, नाम बदल दिए। फिर इसके बाद कास्ट के साथ उन्होंने कहा कि भाई इसको बताओ कि जिसको भी रिजर्वेशन दे रहे चाह रहे हैं उनका बैकवर्डनेस कैसे बता सकते हैं। तो उसमें हमने जैसे कि पत्थर फोड़ने वाले हैं, हम तो संग तराश करते मगर एक्चुअल पत्थर फोड़ने वाले हैं। तो पत्थर फोड़ने वाले मुसलमान, सांपों को लेके नचा के अपना पेट भरने वाले मुसलमान, रीचों से अपना खेल खिला के पेट भरने वाले, उसी तरीके से धोबी, हजाम, खसाब, गसाल, खलेगर, मच्छी पकड़ने वाला, ऐसे कई 22 तबकात को हमने आइडेंटिफाई करे कि देखो गुर्बत का अंदाज ये है। उसके बाद एक शेख को भी इसमें इंक्लूड कर दिए। शेख का इंक्लूड होना ही हमारे रिजर्वेशन की कामयाबी है, क्योंकि 70% शेख है, बाकी के अदर ऑल कम्युनिटी से मिलाए तो 10% होते, जिसमें हमने एक्सक्लूड किसको कर दिए वो भी पूछे। बोले भाई हम सैयद को निकाल दिए, मुगल, अरब, ईरानी, पठान, नवायर या इस्माइलिया, बोरा, ये सबको हम निकाल दिए, बताए। तो लिस्ट बोले अरे बड़ी लिस्ट में वजनों में निकाल दिए, लेकिन एक्चुअल सैयद को और पठान को, ये 2 जनों में से थोड़ा नुकसान हुआ है। उनको हम कहेंगे भाई बाद में हम पीछे के दरवाजे से या खिड़की से फिर अंदर ले लेंगे, फिलहाल तो ये रिजर्वेशन को कामयाब कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 18-19 साल से ये कामयाब रिजर्वेशन चल रहा है। आज 22 लाख बच्चे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बैठे हैं। लास्ट ईयर हमारे शाह आलम ने मुझे भिजाए थे रिकॉर्ड कि 1124 MBBS स्टूडेंट आपके ग्रुप पे में सेलेक्ट हुए, 1124। और उसमें मुबारकबाद है हमारी लड़कियों का। यहाँ भी लड़कियों की तादाद ही ज्यादा दिख रही, तालीम में भी ज्यादा उनका मेजॉरिटी है। 1124 में 700 गर्ल्स है, ओनली 424 बॉयज है। और अगर BDS में गए तो 324 सीट्स है, 354 में 300 गर्ल्स है, ओनली 54 बॉयज है। चलिए गर्ल्स हो बॉयज हो, लेकिन ये तालीमी इनकलाब हमारे साथ आया। तो जब 2014 की सरकार आने के बाद लोग बहुत आस लगाए थे कि तेलंगाना बनने के बाद उसकी मंजरकशी बहुत अच्छे तरीके से हमारे शाह आलम ने करे और जबरदस्त भी कर बताए कि समझे कि मुसलमान कॉलेजों को और क्रिश्चियन कॉलेजों को हिम्मत मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 170 कुछ उन्होंने बताए। मेरे पास भी कॉलेजेस के सीट्स है कि मुकम्मल तौर पर 22 इंजीनियरिंग कॉलेज, सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज 22 बंद कर दिया गया। वो भी अजला में जो थे, मीनाबाद में है, चवड़ला में है, नलगुंडा में है, बोधन में है और महबूबनगर में, ऐसे कई डिस्ट्रिक्टों में से सब कॉलेजेस की लिस्ट भी मेरे पास है। मैं बाद में मीडिया उनको भी देता हूँ कि बंद कर दिया गया। जब असेंबली में क्वेश्चन हुआ, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन था, CM साहब
लीडर ऑफ द हाउस से हम दोनों का मुकाबला हुआ बातचीत के जरिए। उन्होंने कहा कि शब्बीर साहब आप लोगों ने क्या कॉलेजा दिए हैं? और बोला साहब आप इतने इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? तुम लोगों ने पोल्ट्री फार्म में कॉलेज दिया है, तुमने डेयरी फार्म में कॉलेज दिया है। मैं बोला साहब जरा सुनो सुनो सुनो, ऐसा इल्जाम मत लगाओ, एक गवर्नमेंट ही नहीं इसके ऊपर AICTE है और कई एजेंसियां हैं, वो लोग पूरा मिलके देख के कॉलेजा देते हैं। आप उठा के बोल दे रहे कि डेयरी फार्म में, अगर कहीं डेयरी फार्म में है तो बंद करो। ये पुलिस को लेके कॉलेज जाके क्यों बंद कर रहे हो आप? क्या चोर है वो लोग? वो लोग इतना नोबल पेशा अख्तियार किए कि इसके कौम को बिल्ड करने का पेशा बनाए। वो लोग अब एक सिनेमा थिएटर या कोई इंडस्ट्री डालते तो क्या करते थे? ये कॉलेजेस नहीं लगाते तो फिर ये हमारे नई नस्ल, पढ़ी लिखी नस्ल पैदा कहां से होगी? और खास तौर पर मुसलमानों में जो सचर कमेटी कहती है कि सबसे एजुकेशन में सबसे बैकवर्ड कम्युनिटी मुस्लिम है, तो फिर कौन उनको पढ़ाएगा? मुफ्ती उठ के बोले अरे शब्बीर साहब, मेरा दुबई का दोस्त आया था, उन्हें कह रहा था कि वो ऑटो में सफर कर रहे तो पूछे ऑटो ड्राइवर में तुम कौन है? बोले कहां तक पढ़े? इंजीनियर है। अरे इंजीनियर के तुम ऑटो चला रहे? ये तो था शब्बीर साहब हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड कि तुम्हारे बच्चे नाम के सर्टिफिकेट लेके इंजीनियर बने, लेकिन किसी के पास क्वालिटी नहीं है। मैं बोला ऐसा बड़ा इल्जाम मत लगाओ। बेशक आजादी से पहले से भी हमारे अपर क्लास के लोग वो आगे जा रहे हैं और बड़े बड़े स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं। ये उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल से पढ़ के आया हुआ, उसको इसको फर्क होता है साहब, इसको 1 जनरेशन का गैप होना पड़ता, 20 साल का गैप दो, उसके बाद बताते हैं हमारे बच्चों की क्या ताकत है, हमारे इल्म और जहन कितना आगे बढ़ सकता है बताते हैं। मगर आप ऐसा इल्जाम मत दो। फिर थोड़ा उन्होंने डर गए, डर के एकदम बोलने को तो नहीं शब्बीर साहब, मुझे बोलने का मतलब ये नहीं था कि क्वालिटी नहीं है। मतलब क्वालिटी आएंगी, उन्हें पैदा होके 70 साल से हायर एजुकेशन में टॉप स्कूलों में पढ़ रहा, उन्हें सरकारी स्कूल से अब आया, उन्हें पैदा होते भागो तो भागता कैसा? ये असेंबली को ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, सवाल जवाब, ये कोई कहानी है कुछ नहीं, जस्ट ऑन रिकॉर्ड। कभी भी आप असेंबली में हाउस का उसमें गए तो आपको ऑनलाइन में भी मिल सकता। तो मैंने CM को कहा कि साहब ये बच्चा अब पैदा हुआ रिजर्वेशन से, इसको भागो बोलो तो कैसा भागेगा? उसको पहले उठेगा, बैठेगा, रहेगा, फिर भागेगा। भाई इतना समझ 20 साल लगते इसके लिए। अब उन्होंने बोले अरे किधर की किधर चलेगा, ये मजहब का रंग हो जा रहा बोल के एकदम बैठ गए वापस। तो इस तरीके से हमको फाइट करना पड़ा इन इंजीनियरिंग कॉलेजों को या मेडिकल कॉलेजों को बचाने के लिए। तो हमारी यही हमेशा ये थी कि मैं जब पहले 2004 में मिनिस्टर के साथ CM की मेरी पहली राष्ट्रीय बोला साहब हमारे इस्लाम के अंदर हमारी मुक़द्दस कुरान की पहली आयत आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह जल्ले जलालहू किताब जब आयत भिजाए तो नमाज, रोज़ा, ज़कात या खाने काबा की ज़ियारत ये सब नहीं है, भिजाए इल्म, इक़रा बिस्मिक पढ़ो, ये भिजाए। तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने पहले मुक़द्दस कुरान के जरिए इल्म को भिजाया। तो इल्म की कितनी बड़ी अहमियत है और वो इल्म को फैलाने का काम आप इंजीनियरिंग कॉलेज के जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इल्म फैलाने का काम अल्लाह जल्ले जलालहू ने जो कुरान के जरिए भेजा है वो काम कर रहे हैं। इसलिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके 3-4 मसाइल हैं। पहला तो ये कह रहा हूँ कि सरकार आपकी है, आप बेधड़क आइए, आपके जो भी मसाइल है उसको हम पूरे तरीके से हल करके जितना हो सके और माइनॉरिटीज के लिए हम पूरी कोशिश करें, मुस्लिम ही नहीं क्रिश्चियन माइनॉरिटीज के। यहाँ पर बिशप हमारे लॉयोला कॉलेज के चेयरमैन साहब आए कि साहब हमको लॉयोला कॉलेज और अकेडमी को सो एंड सो कॉलेजेस को नहीं मिल रहा। मैंने विदिन 1 वीक के अंदर सारे कॉलेजेस के उनके उसको कंप्लीट करके भिजा के बोला डरो मत, कांग्रेस की सरकार है, मुस्लिम क्रिश्चियन दलित के वोटों से बनी हुई सरकार है, आपको बिल्कुल ये सिर्फ बड़े लोगों की नहीं है। जैसा कि KV राव साहब ने हमारे बता रहे कि ये लोग 300-400 करोड़ रुपया लगा के इलेक्शन कैसा लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही बोले KV राव जी। आपसे मेरा निवेदन है कि जब भी समय मिला आप मुझे थोड़ा ब्रीफ करिए। ऐसा दिख रहा है कि आप पूरे इंसाइक्लोपीडिया है पूरा कि क्या क्या स्कैंडल्स हो रहे, क्या हो रहा है, थोड़ा मेरे को भी ब्रीफ करिए तो मैं भी आगे CM साहब के सामने पेश करूंगा। और आप लोगों ने कहा जो अच्छा
कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में बैठकर कोई अच्छा काम करते, कोई सहाबी तो शुक्रिया अदा करते थे, ये बुरी बात नहीं है। तो आज महबूब आलम खान साहब के सदारत में और कॉलेजेस के ये तमाम एजुकेशन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ दी तेलंगाना का भी ये एक अच्छा इकदाम है कि जो रेवंत रेड्डी साहब ने ब्लैंकेट परमिशन दे दी कि जितने माइनॉरिटी कॉलेज है पूरे 120 सीटें बढ़ा दो, 1 2 3 नहीं। मैं एक्चुअल कुछ ही रिप्रेजेंटेशन आए थे भिजाया, तो उन्होंने बोले शबीर भाई कहीं कोई 1 2 पूरे दे लो, जितने इंजीनियरिंग वाले जो लेना चाह रहे ले लो, चलो। ऐसा ब्लैंकेट ऑर्डर शायद ही कभी मिला होगा कि वन साइड आप लोगों को परमिशन हम दिए ये कर लो। इसी तरीके से वो भी एक मसला बोले कि दोस्त का स्कीम का, मैंने दोस्त से तो निकालने लगा है, लेकिन एक अच्छी बात अब मालूम हुई मुझे कि जो बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन में कि स्कॉलरशिप जो है इसमें हमारे बच्चों को नहीं आ रही, जिससे ऑनलाइन में यानी ऑफलाइन हो जाने के बाद दोस्त से माइनॉरिटीज को तो एक्सक्लूड कर दिए, लेकिन जो एक्सक्लूड हुए वो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स नहीं मिल सक रहा। जरूर मैं पूरी कोशिश करूंगा हुकूमत के सामने ये तमाम चीजें जरा मुझे सही तरीके से आप लोग रिप्रेजेंटेशन बना के देंगे तो मैं उनको भी इंक्लूड करके ये जिस तरीके से दोस्त स्कीम में जो लोग हैं जो दोस्त से माइनॉरिटीज को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है इन लोगों का, लिहाजा उनको भी उनका हक मिलना चाहिए, उनको भी फीस मिलना चाहिए, उसके लिए भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब रहा आपके पुराने ड्यूज है, काफी कॉलेज वाले परेशान हैं। बादशाह मोहिउद्दीन साहब तो बेचारे हमेशा यही कहते हैं कि शब्बीर साहब इतने 22 करोड़ के करीब हमारे फीस रिएम्बर्समेंट वगैरह स्कॉलरशिप्स के प्रॉब्लम से सबके ही है। तो मैं जहाँ तक हो सके हमारी इंटरनल डिस्कशन में ये हुआ कि ये 2 लाख रुपए का फार्मर्स का 15 अगस्त को खत्म हो जाएगा और छोटे छोटे होने के बाद फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जरूर अप टू 75% तक हम लोग आप लोगों के पुराने ड्यूज जितने हैं उसको क्लियर करके उसके बाद सीएम साहब ने ये कहा कि इसके बाद ये इंस्टीट्यूशन वालों को मत सताओ, इनको ग्रीन चैनल में रख दो, साल कोई हमारे पीछे फिरना नहीं और ये लोग एहतजाज करने की जरूरत नहीं है, बच्चों को परेशान करना नहीं है, बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि आप लोग भी बोलते कि भाई गवर्नमेंट दी तो हम देंगे ना। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स के लिए बेहतर है कि इसको ग्रीन चैनल में रखने का सीएम साहब ने इरादा बना लिया है और नेक्स्ट टाइम जरूर, क्योंकि सीएम साहब को मुझे डरे हैं, आप लोग बहुत जल्द मैं सीएम साहब से भी टाइम दिलाकर ये 3-4 मसाइल के साथ आप लोगों को इंटरेक्शन मीटिंग में लगाऊंगा। ये बेहतरीन आइडिया है कि इंटरेक्शन होना, कि मालूमात होना कि हमको भी क्या है वे प्रॉब्लम आपके 10 साल पहले क्या थे, आज का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप। न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम आ रहा, नई दुनिया में नए चीजें हो रहे, उसको हम इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा तो हम उनके मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। तो ये मैं तमाम मुजाहिद आलम से लेकर बहुत बेचैन थे, मुजाहिद आलम, शाह आलम, सब लोग के शबीर अंकल एक मीटिंग होना है रेवंत रेड्डी साहब का और आपका। मैं बोला शुक्रिया तो छोड़े ही हो, तो नहीं इंटरेक्शन, मैं बोला इंटरेक्शन मीटिंग है तो मैं जरूर आता हूँ। अब शुक्रिया क्या 68 में आ गए, शुक्रिया अदा करते करते लेते वो बहुत दूर हो गए, तो इंटरेक्शन है तो बोला जरूर आता हूँ। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, क्या मसाइल है हमारे हमको मालूम होना चाहिए। तो ये 3-4 आप लोग मेरे सामने रखें। और एक नई बात भी हमारे शाह आलम ने कहा, मैं नहीं कहना चाह रहा था, उन्होंने बता दिए कि मैंने सिर्फ 1 वीक के अंदर मुस्लिम लॉ कॉलेज के लिए, क्योंकि लॉ में बड़ा खला पैदा हो गया है, हम हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो मेरे को खुद तो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब कह रहे थे, अरे इंजीनियर पैदा कर रहे हो ठीक है, क्यों वकीला पैदा नहीं कर रहे तुम लोग, वकीलों की बहुत कमी, हम ढूंढ रहे तुम लोगों को, अच्छे एडवोकेट नहीं मिल रहे। तो मुझे जस्टिस सुदर्शन रेड्डी साहब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज है, एक निजी दावत में हम मिले थे, तो मुझे कहा कि भाई अरे डॉक्टर इंजीनियर अब बहुत हो गया, अब तुम पहले लॉयर्स को पैदा करो, वकीला की जरूरत है हम लोगों को। तो उसके ऊपर क्योंकि मरहूम वजारत रसूल खान साहब की एक बड़ी एक ही रीति थी, दवाखाने अपोलो में है, मैं मिलने गया, शबीर वो मेडिकल कॉलेज क्या हुआ, बोले हाथ में हाथ दो, बोले हाथ दिया, मैं वो क्या होता, मैं रहता नहीं रहता, मगर वो कॉलेजेस होना
यूनिवर्सिटी होना, बच्चों में 25,000 बच्चे पढ़ना मेरे कॉलेजों में। मैं बोला अरे मैं आपकी मिजाज कुर्सी के लिए आया, मैं पहले आपका सेहत का ख्याल रखो, अल्लाह सेहत दे देगा, कुछ भी होगा, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, वो जिंदगी दिया मौत भी वही लेगा, मुझे कॉलेज चाहिए। तो बताओ कि उनका जो इरादा था, जिसकी वजह से आज 5 मेडिकल कॉलेज चलाने वाले हिंदुस्तान के अंदर कोई नहीं है, वो वाहिद फैमिली है जिनके 5 है, शादान, BR के, निमरा और आयान, शालू नहीं हुआ शायद, नहीं मैंने परमिशन तो मैं दी परमिशन तो मैंने 5 मेडिकल कॉलेज का परमिशन दिया, फातिमा 6, तो हमारे राजशेखर से लेके हमारे किरण कुमार रेड्डी के हमारे 10 साल में 6 मेडिकल कॉलेज दिया हम लोगों ने, 6। आप बताओ, आसान बात नहीं है। और 6 मेडिकल कॉलेज के जो भी कैसे दिए, 100% माइनॉरिटीज को फिलअप कर दो। अदर देन केरला एंड कर्नाटका के GS में 50% माइनॉरिटीज, 50% नॉन माइनॉरिटीज है, और हमारे GO में 100%। तो बहुत सारी चीजें हुए, अभी बहुत भी करना है। तो लॉ कॉलेज के लिए मैं एडवांस मुबारकबाद देता हूं कि मरहूम मुजरत रसूल खान साहब के कॉलेज के अंदर, और उस कॉलेज को भी जब भी आप लोग मुझे जिक्र करे थे तस्करा कि शबीर भाई CM साहब आना है, कॉलेज इनाग्रेट करना है, अगर आप बोले तो जरूर कोशिश करेंगे कि CM साहब को लेकर आकर बताएंगे, क्योंकि क्या होता है हमको डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। जब राजशेखर साहब का वही था कि आप लोग बुलाते रहते, हम लाते रहते थे, हमारे बीच में उनके बीच में जो दूरियां थी खत्म होते हुए करीब होते रहते, हमारे मसाइल पे उनकी आगाही होते रहती। हम अगर दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएंगे, दूर होते जाते। तो ये चीजों से हम दूरी हमारे लिए खतरा है, दूर नहीं होना चाहिए। कहीं छोटे मोटे, अभी मौलाना खान साहब बोल रहे थे कि कोई भी चीज निकला तो उसमें फायदा और नुकसान, कुछ कहीं फायदा ज्यादा कहीं नुकसान होता है। 100% बेनिफिट कभी भी किसी को भी नहीं होता, कुछ परसेंटेज इधर उधर होता है। तो वो छोटे से परसेंट पे हम नेगेटिव नहीं हो जाना, हम आगे तदवीर बनाना है। जिस तरीके से इस पार्लियामेंट इलेक्शन में पूरा हिंदुस्तान, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, दलित भाई वन साइडेड 95% वोटिंग करे कि जहां इंडिया अलायंस है वहां सारे लोगों को जिताए, नजदीक के करीब करीब आ गए, जिसकी वजह से आप देखें कि मुल्क के अंदर 10 साल के अंदर काफी JPC का हमने डिमांड किया। पहले JPC रफाइल के ऊपर जो जहाज था उसके ऊपर डिमांड करे, 2 महीने बस सड़कों पे फिरे, रोडों पे फिरे, पार्लियामेंट का बैकआउट मत मोदी जी नहीं चुके। फिर उसके बाद आपके हेडनबर्ग के ऊपर, अदानी के ऊपर करे, वो भी 2-3 महीने सारे अपोजिशन बैठे, मोदी जी को चुमटी भी नहीं काटी। लेकिन आज पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी नहीं होने की वजह से आज इंडिया अलायंस का एक झटका, आज मोदी जी आसमान से उतर के नीचे आकर ये बोलना पड़ा कि यस JPC के हम दे रहे हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वक्फ मिल गया है। तो ये अपोजिशन की ताकत होती है, ये जमहूरियत की होती है। तो आप लोगों की वोट की ताकत, आपकी यूनिटी से छोटे छोटे जमातों पे भरोसा करें बगैर बड़े जमातों पर, इत्तेहाद के ऊपर भरोसा करें, जिसकी वजह से हम देखें कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये वक्त मिल कर गया है। बात लंबी हो गई है, तो मैं ऑल मुस्लिम कॉलेजेस एंड क्रिश्चियंस कॉलेजेस, BC SC सबके लिए मैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। एनी मोमेंट जब भी आपका कोई प्रॉब्लम हो आप लोग आ सकते हैं। गवर्नमेंट आपकी है, आपके वोटों से बनी हुई है, और हम आपके साथ है। आपका वेलफेयर, आपकी तरक्की, ये हुकूमत की तरक्की है। हमारी सोच आपको आगे बढ़ाना है, सबके साथ सबके विकास दूसरों का स्लोगन है, ये हम परमानेंट चाहते हैं। आपका विकास हो और आप आगे बढ़ते रहें, यही हमारी गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी साहब की ख्वाहिश है। खुदा हाफिज, जय हिंद। Yeah.